आपका आंसरिंग होगा उस आंसरिंग को आप एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाई यू आर राइटिंग दैट पर्टिकुलर थिंग. क्वेश्चन इज वेरी मच सिंपल एंड आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन आपको जो है बाकी सारे स्टूडेंट को लिखना है. आई रैंडमली रेज द नेम ऑफ पर्टिकुलर स्टूडेंट. तो ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट करिएगा क्या एक सर अभी करिएगा. हाँ हाँ, अभी आप जो लिखे हैं वही चेक होगा आपका. आप जो लिखे हैं उसको एक्सप्लेन करिएगा. तो कॉपी में लिखा होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर बोले तो आप उसको दिखा सकें कैमरा से या उसका स्नैप लेकर किसी भी तरह से. ठीक है ना, ताकि आपने वर्कआउट किया है ये पता चल जाए. क्वेश्चन वेरी सिंपल होगा. क्वेश्चन क्या हुआ? नीरज कुमार सिंह. नीरज कुमार सिंह कौन है जी? आपके बैच में बैच का है कोई नीरज कुमार सिंह? यस सर. नीरज कुमार सिंह 1 minute sir, I am remain. हाँ, उसको आईडी ये सब मेंशन करिए. Okay sir, 1 minute. ओके. वीडियो कॉलिंग. नाउ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जस्ट अच्छा शेयर नहीं हो रहा है ना. क्वेश्चन क्या है सर? हाँ, क्वेश्चन हम एक एक करके देंगे. आप क्वेश्चन नोट करेंगे, आंसर लिखते जाएंगे. ठीक है ना. और सारे लोग जो है आंसरिंग करेंगे. रैंडमली किसी का भी नाम हम रेज कर सकते हैं. ठीक है ना. बाकी लोग जब आंसरिंग कोई करेगा तो उसका आंसर चेक होने के बाद अपने आंसर को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर मैच कर रहा है या इज देयर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन योर आंसर. तो देन वी जस्ट रिव्यू द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो. तो वन बाय वन the first question is just note it down the question also in a parallel manner. Question 1 is first question is don't give the answer when just note it down the question and write the answer by yourself. और ब्रीफ में आंसरिंग करना है, डिटेल में नहीं. 1 to 2 सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा. एक सेंटेंस या एक वर्ड भी काफी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द साइज ऑफ the address bus and data bus in the 8086. Now note down the question. First question, what is the size of the address bus and data bus in the 8086? Second question, what is अभी बता सकते हैं सर आंसर? नहीं बोलना नहीं है, आप लिखिए, कॉपी में लिखिए, इसका आंसरिंग करिए. हम पूछेंगे अभी. तो व्हाट इज, आप जब पूछेंगे तो आप बताइएगा. व्हाट इज मीन्ट बाय मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस एंड डेटा बस? Address and data bus. Question 3. Question 3 you have what is the basic difference between conditional flag and control flags? Conditional flags and control flags. Question 4. Which pins of Intel 8086 Intel 8086
is responsible for minimum and maximum mode of डिस्कनेक्ट हो गया था. Now it is visible. Yes, yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Question number 5 is now these are the 5 questions you have to answer. First question is, what is the size of the address bus and data bus in the 8086? Second one is the what is meant by multiplexed address and data bus. Third one is what is the basic difference between conditional flags and control flags. Fourth question is which pins of which pin, not pins, right, pin, because we have to identify the single pin. So which pin of Intel 8086 is responsible for minimum and maximum mode of operation? तो मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑफ ऑपरेशन के लिए कौन सा पिन रिस्पॉन्सिबल है? और फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय डीएमए ऑपरेशन? In the previous class we just discussed about the DMA and program data transfer scheme. So what is basically you do not have to write the answer what is DMA data transfer scheme. You have to mention only what is DMA operation. यानी कि in DMA operation what types of functioning going on inside the computer. So these are the 5 questions. Just take 1 to 2 minutes to answer, because after that we just have some more questions. I think that how many of you completed the first question? Raise the hand. Yes, sir. Yes, sir. Only 3, 4, 5. Only 5 students and 7 students. The rest of the students are not capable to write the answer of that question. बाकी लोग नहीं लिख पा रहे हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बाकी लोग, केवल 8 लोग रेज किए हैं. अच्छा ठीक है. नाउ लो योर हैंड. लोअर हैंड करिए. क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिए होंगे सब लोग. Again, Yes, sir. raise the hand. How many of you completed question number 2? Two participant only. Very simple to write the answer of this question. You have to give the answer of the question in word as well as maximum. Only 2 participants completed the second question. Sambhav and Mohammad Ajmat. विष्णु लिख रहे हैं। देखिए कितना समय लग रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको तो 2 वर्ड में लिखा जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देने के लिए. ठीक है, हैंड लो कर दीजिए. हम पूछते हैं रैंडमली, पूछेंगे. जस्ट टेक 2 minutes टू राइट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. ऑन योर कैमरा ऑन रखिए. सभी लोग कैमरा ऑन करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है.
आई थिंक आंसर कंप्लीटेड हो गया होगा, कंप्लीट हो गया है ना सबका? वन क्वेश्चन नहीं बना सर, 4 बन गया। ठीक ठीक, just take 1 minute. After that I just select the name of the particular student, and whenever I raise the name, you just on your video camera if you are not on your video camera, and unmute yourself, and whatever answer you are noted for the particular question, you just read that answer and as well as explain the same also. Now, roll number 14, 444, 5966, Rahul. What is your answer? What is the answer of first question? Just on your camera. Roll number 14, Rahul. बताइए राहुल कुमार। आवाज नहीं जा रही क्या मेरी? आ रही है सर। राहुल कुमार, चलिए राहुल कुमार इज नॉट, status of Rahul Kumar is not ready, so I just switch to the another student. Yes. Yes, Rajneesh Kumar, roll number 98. Roll number 98, unmute yourself. नहीं लिख पाए क्या जी? यस, कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया? रेज द हैंड। सर 3 किए, 3 को किए हैं, 2 को नहीं कर पाए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम पूछ रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, आप बताइए रंजन कुमार, रोल नंबर 26, अनम्यूट योरसेल्फ एंड ऑन योर वीडियो। यस सर। योर फर्स्ट आंसर। एड्रेस बस 20 बिट का और डेटा बस 16 बिट का। डेटा बस 16 बिट और एड्रेस बस 20 बिट। तो इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। अगर ये आंसर सबका है तो बाकी लोग भी करेक्ट कर लीजिए। दैट आंसर इज करेक्ट वन। यस सर, करेक्ट है। यस सर, सेम है सर। सेम है सर। रिपीट कर दीजिए सर। Address bus is of 20 bit and data bus is of 16 bit. Now the second question is, what is meant by multiplexed address and data bus? ठीक है ना, multiplexed address and data bus. So I just want the answer of this question from yes, Mukesh Kumar, roll number 38. Second question. सर हाँ, सेकंड क्वेश्चन बताइए। सर ये नहीं बनाया है। नहीं बनाया है, ठीक, ओके। क्यों नहीं बनाया? नहीं समझ में आया क्या? मल्टीप्लेक्स जब हम लोग डिस्कस किए थे पिन डायग्राम, तो वहाँ मल्टीप्लेक्स बार बार यूज कर रहे थे ना। कुछ कुछ पिन था जो मल्टीप्लेक्स था, 2 मोड के लिए यूज हो रहा था, 2 पर्पस के लिए यूज हो रहा था। एक शेयर के लिए हो रहा था। हाँ, तो आप बताइए, संभव बताइए। सर मल्टीप्लेक्स एक एड्रेस बेस और डाटा बेस के बीच में होता है। अगर मतलब मेरा एएलई हाई हो जाता है तो एड्रेस बस को कैरी करता है, और एएलई लो हो जाता है तो सर वो डाटा बेस को कैरी। Oh, that means कि on the basis of ALE pin, यानी कि if the ALE Yes, is sir. at logic 1, then that Yes, sir. multiplexed address data bus is that pin is utilized for addressing
एड्रेस के लिए यूज होगा, और जैसे ही ALE लॉजिक 0 पर जाएगा तो आपका डेटा इनेबल हो जाएगा, डेटा बस Data. इनेबल हो जाएगा। Yes. दैट्स व्हाई कि Yes. शेयर करेगा। हाँ, DEN जो है कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो DEN जो पिन है वो जब लॉजिक 0 होगा आपका ALE तो वो ऑन हो जाएगा, डेटा बस इनेबल हो जाएगा। तो जैसे ही डेटा बस इनेबल होगा तो आपका जो मल्टीप्लेक्स का मतलब है कि द सेम पिन इज यूज्ड फॉर एड्रेस एज वेल एज डेटा बस। तो अब सेम पिन अगर एड्रेस और डेटा बस दोनों के लिए यूज होगा, इसका मतलब है एक समय में कोई एक ही के लिए यूज होगा, या तो एड्रेस के लिए यूज होगा या डेटा के लिए। तो इनिशियली आपका जो CPU है, प्रोसेसर है, उसको एड्रेस बस का जरूरत होता है, क्योंकि वो एड्रेस एलोकेट करता है जिसके उसके बेसिस पर आपका प्राइमरी मेमोरी फेचिंग इनिशिएट करता है। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ द एड्रेस, डेटा इन और डेटा आउट का होता है। जब प्रोसेसिंग होना होता है कि इंस्ट्रक्शन पर, तब डेटा को इन कराना होता है और डेटा को आउट करना होता है। तो प्रोसेस करने के लिए डेटा पहले इन होता है और आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा आउट होता है, आउट हो जाता है। हाँ, तो डेटा बस का काम एड्रेस बस के बाद होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आपका एड्रेस बस ALE पिन लॉजिक एट 1 होता है, और नॉन कॉम्प्लीमेंट्री पिन है ALE लॉजिक 1 होने का मतलब है कि आपका एड्रेस एलोकेट होना शुरू हो जाता है एड्रेस बस के थ्रू, ठीक है ना। तो दैट इज ओके। अगर आपका आंसर, बाकी लोग भी चेक कर लीजिए, अगर इफ द आंसर इज सेम देन योर आंसर इज ओके। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? Basic difference between conditional flag and कंडीशनल Some फ्लैग please और repeat. कंट्रोल फ्लैग में I बेसिक match डिफरेंस now. क्या है? हाँ, कंट्रोल फ्लैग और एंड कंडीशनल फ्लैग में बेसिक डिफरेंस। तो ये रोल नंबर 94 452, रोल नंबर 94 कोमल कुमारी, ऑन योर वीडियो एंड शेयर योर आंसर, वट एवर आंसर यू आर राइटिंग। सभी लोग ऑन रखिए, वीडियो कैमरा को ऑन रखिए। हाँ, बताइए। Conditional flag will be and control flag will be process. नहीं, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ये अजमत बताइए आप, रोल नंबर 27। नो ये सर हम नहीं बनाए सर। ओके, विकास और कुमार नंबर बनाया है। 56, यू आर रेजिंग हैंड। What is the basic difference between conditional flag and control flag? I think that the answer of this question, I expect the answer of this question from most of the students. अब बताइए विकास। आवाज तुम अनम्यूट करो, पहले आवाज तुम्हारा नहीं आ रहा, अनम्यूट करो। Sorry, sir. हाँ Sir, control flag will be set reset by processor and conditional flag will be set reset control by programmer. okay, that is the difference. Main difference is what is the effect occur inside the computer by these two flags? किस तरह का ये रोल प्ले करता है ये दोनों फ्लैग, और कब किस फ्लैग का जो है इनिशिएशन होता है, किस तरह का ऑपरेशन के बाद कौन सा फ्लैग इनिशिएट होता है? सर दोनों से सेट रिसेट होता है, कंट्रोल फ्लैग का प्रोसेसर से कंट्रोल होता है और कंडीशनल फ्लैग का प्रोग्रामर। हाँ, प्रोग्रामर जो आपका इनपुट आउटपुट प्रोसीडिंग करेगा उसके बेसिस पर आपका ALU में ऑपरेशन प्रोसेस होगा, और ALU के ऑपरेशन के बेसिस पर कंडीशनल आपका जो है फ्लैग हाँ सेट और रीसेट। रीसेट तो पहले से रहता है और सेट आपका होगा अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन ऑन होगा तो, लाइक साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, एनी टाइप्स ऑफ फ्लैग इज ऑन, दैट इज व्हाई इट इज कंडीशनल फ्लैग। ओके, दैट इज ओके। तो कंट्रोल फ्लैग अफेक्ट द प्रोसेसर इंटरनल वर्क, प्रोसेसर के वर्क को अफेक्ट करता है, दैट मीन्स इंटरप्ट फ्लैग। और आपका जो कंडीशनल फ्लैग है दैट इज टोटली अंडर बेसिस ऑफ द प्रोग्रामर, यानी कि जो प्रोग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंस्ट्रक्शन फेचिंग होता है, इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग होता है, उसके बेसिस पर आपका जो है कंडीशनल फ्लैग ऑन होता है, ठीक है, दैट इज ओके। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन? Which pin of Intel 808 is responsible for minimum and maximum number of operations? Yes, इसका आंसर जो है I expect the answer from roll number 19 5975. Sir, pin number 33.
Pin number 33. And what is the name of that pin? Pin number is 33. MN bar or MX bar? MN bar, MX bar, both are in complementary mode. Yes, Vishnu Sharma, बताइए. सर 14 होता है ना? सर 40. पिन नंबर 33 होगा सर इसका मैक्सिमम सर, और 40 मिनिमम होगा ना? ऑपरेशन के लिए। पिन नंबर 40 तो है, मतलब 40 भी रिस्पॉन्सिबल, लेकिन मेनली आप पिन आपका MN MX बार ही है, MN बार नहीं है, MN और MX बार है। MN आपका जो है नॉन MN हो गया मिनिमम के लिए। MN बाय और MX बार। यस सर, समझ गया। पिन नंबर, हाँ, पिन लेकिन नंबर सही 40 बोला आप है। यहाँ नहीं बताएंगे। पिन नंबर 40 तो मैक्सिमम और मिनिमम के लिए रिस्पॉन्सिबल है ही, कि जब आप DC वोल्टेज लो करेंगे, जब लो करेंगे तभी आपका जो है मैक्सिमम ऑपरेटिंग मोड इनिशिएट होगा। जब तक आपका DC वोल्ट सप्लाई होगा 40 पिन से, तो आपका मैक्सिमम ऑपरेटिंग जो मिनिमम ऑपरेटिंग मोड वर्क करेगा। तो वो पिन नंबर 40 है, पिन नंबर 40 है, लेकिन बेसिकली हमारा जो एक्चुअल जो पिन है दैट इज पिन नंबर 33। हाँ, जो आपका MN MX बार से रिप्रेजेंट होता है, जिसमें लॉजिक 1 होने पर मिनिमम ऑपरेटिंग मोड में आपका वर्क करता है प्रोसेसर, और जैसे ही लॉजिक 0 होता है, लॉजिक 0 कब होता है, तब आप बताएंगे कि पिन नंबर 40 में जब DC वोल्टेज सप्लाई लो करते हैं, तब आपका ये मिनिमम यानी लॉजिक 0 में जाता है। जैसे ही लॉजिक 0 में जाएगा तो आपका मैक्सिमम, चूंकि कॉम्प्लीमेंट्री पिन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पिन होने के चलते वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। यस सर। हाई होने का मतलब है कि इनेबल हो जाना, और मिनिमम जो है वो लो हो जाता है। 0 है तो 0 MN 0 हो जाता है, तो वो डिजेबल्ड हो जाता है। हाँ, दैट इज करेक्ट। पिन नंबर 34 होगा आंसर। ओके 33 होगा। यस सर, 33 नंबर पिन। हाँ, 33 में MN MX बार जिसमें भी होगा। पिन नंबर कितना में है MN MX बार? वही सर 33 में MN बाय M बार। 33 में है सर। No, that is okay. Now the last question is, what do you mean by DMA operation? तो कितने लोग इसका आंसर लिखे हैं? What do you mean by DMA operation? Only 2 students. The rest of the students are not connected or only connected but not present in the class. बाकी लोग क्या present नहीं है क्या? ऑन करिए वीडियो। Only you are matching the answer, what is the correct answer, and note it down, or whether you are also writing the answer of the same question. Most of the students are not raising the hand because I expect number of students to raise the hand. और जो समझ आया सर वही लिखे हैं। हाँ ठीक है, that's why whatever you are writing, share that one. जो लिखे हैं उसी को शेयर करना है। Yes, अंबुज, एक कुमार शुभम, रोल नंबर 82। Roll number 82, you are raising hand on your video. यस सर। काफी लोग हैंड लो कर दीजिए। यस सर। हाँ बताइए। Sir, the operational domain model is a central part of any model-based approach describing the system in the context of its environment. You are giving the answer, but थोड़ा सा और आसान बनाइए, थोड़ा सा इसको समझने में आसानी से समझ में आए, और अच्छे ढंग से कौन बता सकते हैं? बेसिकली डीएमए ऑपरेशन में होता है, मैं बता इसको हम डिस्कस किए थे। हाँ, कौन एक्सप्लेन कर सकते हैं? अजीत कुमार। सर सिंपल भाषा में सर बोलना चाहूंगा सर, 2 लाइन में। डीएमए ऑपरेशन को ऐसे नहीं चलेगा, डाटा को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं जैसे डायरेक्ट मेमोरी। सर बोलिए सर, डीएमए का फुल फॉर्म पहली बात तो होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक। और इसमें क्या होता है क्या सर कि ये डायरेक्टली डेटा को एक्सेस करता है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ सीपीयू। without CPU intervention, direct data is transferred from one location to another location. So the speed of the transferring is little bit faster than the speed of program data transferring. So program data transferring programming unit data. Because the data transferring occur in between peripheral and memory in a direct mode without any CPU intervention. तो अगर ऐसा लिखे हैं सब लोग तो डीएमए ऑपरेशन इतना ही लिखना था आपको कि डीएमए ऑपरेशन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इज अकर्ड एंड इन बिटवीन मेमोरी एंड पेरिफेरल्स डेटा इज ट्रांसफर्ड थ्रू द मेमोरी बसेस बिकॉज द बसेस इज इन अंडर कंट्रोल ऑफ डीएमए कंट्रोलर एंड फॉर दैट रीजन द पर्टिकुलर डीएमए ऑपरेशन इज इनिशिएटेड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू जस्ट नोट इट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन.
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है data क्वेश्चन नंबर 6। deep data transfer is multiple processor. हाँ 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 हाँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो अभी हम लोग जो बोले उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। विच पिन इज रिस्पॉन्सिबल, just note it on the question and then we discuss that question. So which pin is responsible for initiating DMA operation in 8086? जस्ट आप क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिएगा, अभी बोलना नहीं, जब बोलेंगे तब बोलिएगा। तो विच पिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग डीएमए ऑपरेशन इन 8086? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन minimum and maximum operating mode in 8086? यानी बेसिक डिफरेंस क्या है between हाँ, between minimum 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 and maximum operating mode in Intel 8086 you can write. What is the basic difference? उनके तरफ आवाज हो रहा है, अभी म्यूट कर लीजिए, जब बोलना होगा तब अनम्यूट करिएगा। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ। सेकंड क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम लिखा है सर। हाँ, आपको ये बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम मोड में क्या डिफरेंस है। 8086 में जो मिनिमम और मैक्सिमम मोड होता है उसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, आपको 4-5 डिफरेंस नहीं बताना है, सिंगल डिफरेंस बताना है। देन आइडेंटिफाई द मोड ऑफ एड्रेसिंग if the offset or effective address is given, ठीक है ना। अब इसमें 2-3 पार्ट है, A, B, C, D, ठीक है ना। तो ए में इफेक्टिव एड्रेस दिया हुआ, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो किस मोड ऑफ एड्रेसिंग के लिए इफेक्टिव एड्रेस लिखा गया है। केवल एड्रेसिंग मोड को आइडेंटिफाई करना है।
Now note it down the question and write the answer. And after certain time interval, again we just discuss the question answer. What is the exact answer of that question and what you are writing? First, sixth question is, which pin is responsible for initiating DMA operation in Intel 806? Second, seventh question is, what is the basic difference between minimum and maximum operating mode in 8086? And question number 8 is, identify the mode of addressing. Yani you have to identify the addressing mode. Name out the addressing mode for Intel 8086. Identify the mode of addressing if the offset or effective address is given. So this is the mode of addressing. You have to identify the mode of addressing for Intel 8086. Whatever we discuss the addressing modes of Intel 8086, on the basis of that, you can identify. EA stands for effective address. EA equal to whatever written here. EA stands for effective address. Sir. Completed? Sir, second question is बना sir. और 6 और 8 नहीं बना? सर 8 नहीं बना। बनेगा बनेगा सब बनेगा। ठीक, आप पहले कंप्लीट करिए। 8 नंबर किसने बनाया है? रेज द हैंड। क्वेश्चन नंबर 8 किसने बनाया है? रेज द हैंड। अच्छा ठीक है, ठीक है, वी जस्ट एनालाइज दैट क्वेश्चन। यस, दीपू कुमार। सिर्फ 2 ही बना सर, उसमें से 6 और 7 बना, 8 नहीं बना है ना? 6 7 बना है सर। 8 का ए भी बना सर, याद था मतलब। ए भी बनेगा तो बाकी भी बन जाएगा। जिसका ए भी बनेगा वो सर नंबर ये सब वो पता है, लेकिन उसका नाम मतलब सर याद ही नहीं मैं तो वही तो याद रखना है ना, इसी के लिए तो रिव्यू जरूरी है। केवल टॉपिक डिस्कशन के साथ साथ थोड़ा सा रिव्यू जरूरी है, क्वेश्चन आंसरिंग रिलेटेड टू द टॉपिक, ताकि आपको क्वेश्चन बेसिकली तो आंसर का क्वेश्चन का करना है ना। एग्जामिनेशन में तो टॉपिक तो पूछा नहीं जाएगा, उससे हो सकता है टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए ओवरऑल टॉपिक जानना जरूरी है। ये हर वीक में कराइएगा सर ये? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, इसको ये एक्टिविटी हमको जरूरी लग रहा है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टॉपिक ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है उस टॉपिक से निकलता है। तो ये अगर क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा तो इससे मैक्सिमम आप टॉपिक आपका कवरेज हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी एक आध क्वेश्चन होगा वो डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि डाउट क्लियरेंस में बहुत कम लोग ही रेज करते हैं डाउट। तो अब हमको डाउट खुद से रेज करके और बाकी का डाउट क्लियर करना पड़ेगा। 2-3 स्टूडेंट केवल रेज करते हैं, उसके चलते बाकी लोग बेनिफिटेड होते हैं। आई एक्सपेक्ट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो कि दे रेज द डाउट, बिकॉज व्हेनेवर दे आर रेजिंग द डाउट तो मैक्सिमम सॉल्यूशन आपको मिलेगा। मैक्सिमम आपका जो है वो इनकम्प्लीटनेस जो है वो कंप्लीटनेस की तरफ, यानी डाउट जो है वो क्लियर होगा। चाहे 1 भी 2 करते हैं तब भी होता है। तो आई थिंक दैट यू जस्ट रीजॉइन, and after rejoining we just analyze the answer of this question, and we have some more question also. Okay sir, just take 1 minute, I just take the attendance. ठीक है बात करो। ठीक ऐसे हमरा बात करे दे, हमरा बात नहीं, हमरा बात करे है कि हमरा बात नहीं है। तो बात करते हैं आप 30 क्लास से।